Settling down in Canada require ample of research. And if you have like correct information, so you will be certain about some things. You will be certain about your options, your research work, your plans, and your decision. So it's very important to go for research. And in this video, I am going to let you know about some essential information which will help you in your successful and confident life in Canada. So we'll be beginning from and we'll be like starting from settlement services, and we'll be moving towards the like how to obtain your driving license in Canada. So let's just begin with the video. And before that, if it's your first winter, this video will help you out from where you can buy your clothing, your stuff. Go and watch this video out and let's just move forward. सो सबसे पहले हम बात करेंगे कुछ सेटलमेंट सर्विसेज के बारे में जो कि कैनेडियन गवर्नमेंट फंड करती है, और इन सर्विसेज को लेने के लिए आपको कोई भी जो है कॉस्ट नहीं देनी पड़ती है. सो व्हाट आर दी सर्विसेज अबाउट? सो कुछ सेटलमेंट सर्विसेज होती हैं परमानेंट रेजिडेंट्स ऑफ कनाडा के लिए, इफ़ दे आर आउटसाइड इन लाइक आउटसाइड कनाडा और इफ़ दे आर लाइक इनसाइड कनाडा. सो ये कुछ एजेंसीज होती हैं जो ये सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं. लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, जहाँ से आप अपनी लोकेशन के अकॉर्डिंग इन एजेंसीज की कहाँ पर ये जो इनके ऑफिसेज हैं आप उनको विजिट कर सकते हो. तो ये जो सर्विसेज होती हैं ये किस तरीके की आपको लाइक जो एजेंसीज होती है सॉरी किस तरीके की सर्विसेज आपको प्रोवाइड करती हैं. सो बेसिकली दे हेल्प यू इन द डेली लाइफ. अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है लाइक इन सेटलिंग डाउन इन कनाडा, तो आपको उसमें हेल्प करते हैं, आपको जॉब ढूंढने में हेल्प करते हैं, आपको जो है कम्युनिटी में सेटल डाउन होने में हेल्प करते हैं. दे मतलब जैसे नॉर्मल डे टू डे लोकल एक्टिविटीज़ हो रही हैं उसमें आपको लाइक इंक्लूड करवाने की कोशिश करते हैं. लाइक दे वॉन्ट यू टू पार्टिसिपेट इन देन सो दैट यू गेट फेमिलियर विद द एक्टिविटीज़, फेमिलियर विद द डिफरेंट पीपल. देन वो आपको जो है अगर कोई लैंग्वेज बैरियर आ रहा है, अगर आप किसी कहीं पर जॉब कर रहे हैं तो वहाँ पर कोई लैंग्वेज बैरियर है तो उसके अकॉर्डिंग आपको डिफरेंट लैंग्वेज ट्रेनिंग देती है. कैनेडियन गवर्नमेंट सबसे ज़्यादा लैंग्वेज ट्रेनिंग में फ़ंड करती है, और वो आपको जो है डिफरेंट ट्रेनिंग लाइक सर्टिफिकेशन और नेटवर्किंग प्रोग्राम्स ये सारी चीज़ें को बारे में लाइक दे एक्सप्लेन. सो इफ़ यू आर अ न्यू कमर, लाइक इफ़ यू आर अ न्यू इमिग्रेंट टू Canada, so you can just search about these post and pre-arrival services and just get benefit out of them. Some of us are unaware about these services, so just go and check this out. So in the next point we will talk about choosing a city. So, you know that Canada is the largest second country in the world with 9.98 million square kilometers of area, like the land, and it have almost 10 provinces and 3 territories. So you have to select the best city. So amongst all the best cities in the Canada are Toronto, Vancouver, and Calgary. And there are many other cities which you can also go for to settle down. So you have to take care of some factors which are basically you have to search about like housing, or you have to search about the job availability, like the minimum wage rate, what is the like for the job, and you have to go for the market area and settling down services, and some of or your friends or not, like so that you can settle down well and you don't have to have like you don't have to get nostalgic about your country or your old memories. So you have to take care of some factors while choosing the city you want to go for. So now we'll talk about find housing. So whenever you are coming to Canada, तो यहाँ आने से पहले आप लोगों को रहने के लिए of course एक place तो ढूंढनी पड़ेगी, and you have to search for something which is more affordable, which is more comfortable, which is convenient, and which will be the right for you. So you have to first go for a short term accommodation, so that जब आप यहाँ पर आते हो आप उस एरिया को डिस्कवर करोगे, you'll find a job as per you, as per your field. उस जॉब के अकॉर्डिंग then you'll search for a neighborhood, you'll search for a place जो आपके लिए परफेक्ट होने वाली है. सो कुछ हाउसिंग जो लाइक अकोमोडेशन आप सर्च कर सकते हो, मैंने ऑलरेडी इस वीडियो में भी शेयर किया था, आई एम जस्ट लेटिंग यू अगेन. सो देयर आर मेनी अदर प्लेटफॉर्म सच एज Airbnb, Marketplace, and there is also one another platform which is just launched in Canada, which is also known as Cashwork. Name is on the screen, so you can just also use this website like for your finding accommodations. So it is very important to find a perfect accommodation so that you like when you arrive you have some place to live and just go for the another after like arriving here. Let's just begin with the another point. So now we'll talk about SS Healthcare.
So basically इस point में I am going to let you know about the healthcare services in Canada. So what you have to do is जैसे जब भी आप कनाडा में आते हो और after your PR or if you are the permanent resident from outside Canada, so पहला स्टेप आपका यही रहेगा कि आपको यहाँ पर आने के बाद आपका हेल्थ कार्ड जो है लाइक इशू करवा लेना है. अगर आपके पास आपका खुद का हेल्थ कार्ड होगा सो यू विल बी एबल टू गेट द फ्री सर्विसेज विच आर नॉट फ्री बिकॉज आप लोग जब टैक्स पे करते हो तो यू ऑलरेडी पे सम अमाउंट ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज ओवर देयर. सो इट्स बेसिकली द मनी यू गिव. सो लेटर ये बोलने में आ जाता है दैट द सर्विसेज आर फ्री. बट एनी हाउ सो जब आपके पास वो हेल्थ कार्ड होगा तो आप लोग जो है बेस्ट लाइक सर्विसेज हेल्थ केयर सर्विसेज को असेस कर सकते हो. बट अगर आपके पास कोई भी हेल्थ कार्ड नहीं है लाइक डिफरेंट प्रोविंसेस के डिफरेंट हेल्थ कार्ड है, जैसे ओंटारियो का डिफरेंट है मोस्ट प्रोबेबली, सो आप उस हेल्थ कार्ड को यूज़ कर सकते हो सर्विसेज को लेने के लिए और आपको किसी भी चीज़ के लिए पे नहीं करना पड़ेगा वेदर कोई भी कितना भी बड़ा मेडिकल ट्रीटमेंट क्यों ना चल रहा है. बट अगर आपके पास वो हेल्थ कार्ड नहीं है सो यू हैव टू पे ऑल योर मनी फ्रॉम ऑन लाइक फ्रॉम योर ओन पॉकेट. सो द फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप इज़ जब आप कोई भी सिटी चूज़ कर रहे हो तो वहाँ के हेल्थ केयर सिस्टम के बारे में मेक श्योर आप पता करके रखो लाइक जस्ट फॉर द वेलबींग ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली. एंड आप पता करना कौन सी सर्विसेज जिस लाइक सिटी में आपको बेस्ट सर्विसेज दिखती हैं आप उस लाइक सिटी को चूज़ करना एंड जस्ट गो फॉर दैट. So in the next step you have to learn about the education system of Canada. तो जब आप कनाडा के बारे में या जोन सी भी सिटी आप चूज़ कर रहे हो तो आपको ये मेक श्योर करना है कि वहाँ का एजुकेशन सिस्टम के बारे में आपके पास काफ़ी अच्छा लाइक रिसर्च वर्क होना चाहिए बिकॉज आफ्टर ऑल योर चिल्ड्रन आर गोना गेट एजुकेशन फ्रॉम देयर. सो बेसिकली यहाँ का जो लाइक एजुकेशन सिस्टम है वो 3 लेवल्स में डिवाइडेड है. इट्स बेसिकली द प्राइमरी, सेकेंडरी एंड पोस्ट सेकेंडरी एंड देयर आर सम प्राइवेट एंड पब्लिक स्कूल्स टू. ये तो वेरी प्रिटी कॉमन थिंग हो गई है कि जो पब्लिक होगा वो फ्री होगा, जो प्राइवेट होगा इट्स कॉस्ट लाइक इट्स गोना कॉस्ट यू समथिंग. तो जी यहाँ पर जब आप आओगे आपको मेक श्योर करना है कि आप आने के बाद अपने प्यारे प्यारे बच्चों को ज़रा स्कूल भेज दीजिएगा. और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है लाइक गेटिंग रजिस्टर्ड योर चिल्ड्रन टू द स्कूल्स फॉर एनी काइंड ऑफ लेवल ऑफ एजुकेशन सो यू कैन जस्ट टेक द हेल्प ऑफ द सेटलमेंट एजेंसीज जिसके बारे में मैंने पहले पॉइंट में बात की थी. तो आप उन सर्विसेज के पास जाकर अपने लाइक रजिस्ट्रेशंस को जो है कंप्लीट करवा सकते हो. यू कैन जस्ट like fulfill those. So in next step we are going to talk about the like how to obtain your driving license and some like important laws or like we can say how to obtain or learn about those law. So let's just begin with that. So for obtaining your driving license you have to learn some skills of driving so that you know maintain your safety and other safety too. सो बेसिकली जब आप टू गेट योर ड्राइविंग लाइसेंस सो कुछ 2 चीज़ें रहती हैं. अगर आप कुछ कंट्रीज से बिलोंग करते हैं जैसे जापान है, यूएसए है, कुछ एक ऐसी जगह है जहाँ से आप लोग अपने लाइसेंस को लाइक टोटली एक्सचेंज करा सकते हैं विद दी कैनेडियन लाइसेंस. मतलब आपको यहाँ पर आके G1 G2 वगैरह देने की ज़रूरत नहीं. आई मीन G1 और लाइक आई विजन टेस्ट आपको देना पड़ेगा बट जो रोड टेस्टिंग होती है बिकॉज इट्स काइंड ऑफ अ सिमिलर विद दोज कंट्रीज जो कैनेडियन कंट्रीज के साथ दूसरी कंट्रीज है उन दोनों के बीच में लाइक उनकी जो ड्राइविंग स्किल्स है वो ऑलमोस्ट सेम है. तो वहाँ पर आप अपना खुद का होम कंट्री वाला लाइसेंस यूज़ कर सकते हैं एंड यू कैन जस्ट एक्सचेंज. बट अगर आप कुछ कंट्री लाइक यू जस्ट बिलोंग फ्रॉम इंडिया सो वहाँ अगर आप उस कंट्री से बिलोंग करते हैं तो वहाँ पर आपको लाइक यू कांट एक्सचेंज. तो यहाँ पर आपको G1 देना पड़ेगा, आई टेस्ट विजन होगा, देन आपको G2 देना पड़ेगा, देन यू कैन गो फॉर दी योर फुल लाइसेंस. बट अगर आपके पास आपका जो है एक्सपीरियंस लेटर विच इज़ कॉल्ड एज एक्सट्रैक्ट, अगर आपके पास एक्सट्रैक्ट है तो आप जो है नॉर्मल यू कैन जस्ट गो फॉर द जी फुल लाइसेंस ड्राइविंग रोड टेस्ट. G1 तो देना ही पड़ता है सबको चाहे कोई भी है. तो ड्राइविंग लाइसेंस के और डिटेल्स लाइक विंटर टिप्स क्या हैं, कैसे आप अपना लाइसेंस ले सकते हैं, कब लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए, कहाँ से लेना चाहिए और बहुत कुछ विल गोना गो इन डिटेल इन दी अनदर वीडियो. सो दिस वॉज ऑल अबाउट हाउ टू सेटल इन कैनेडा विद कॉन्फिडेंस. आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों में भी कुछ कॉन्फिडेंस आ गया होगा. And I also got some confidence after letting you guys know about such more thing. And मुझे भी कुछ चीज़ें नहीं पता चली after like searching about all this material. So if this video helped you out, do mention in the comment box and do let other people know about this
like these things, so that they can also plan to get settled down in Canada and with confidence. So we'll meet you in the next video, and do subscribe, do share, and till then take care. Omicron अब बढ़ता जा रहा है, so COVID cases are just getting higher than before, so just take care of yourselves. See you in the next video.